না সমান নয়, सब मानुष मंदो नय। बाबा बोल रहे हैं 12 साल में 12 महीना है, सब महीना समान नहीं है। ऐसे ही सब व्यक्तियों में हर एक कोई व्यक्ति सामान्य नहीं है। सब मानुष मंदो नय, सब मानुष ভালো নয়। মানুষের মধ্যে তারতম্য, দেশের মধ্যে তারতম্য, মাসের মধ্যে এই যে কার্তিক মাসে ভগবান এই মাসের দেবতা, এই মাস অতি উত্তম মাস। কেন? এই মাসে যারা কার্তিক মাসে করে কার্তিক ব্রত তো সব মাসে হয় না, একাদশীতে হয়, জন্মাষ্টমীতে হয়, কিন্তু কার্তিক মাইনাকে মাইনা বল ব্রত, কার্তিক ব্রত বলি। এই ব্রত যারা পালন করে নিয়ম করিয়া 4 মাস মানে চাতুর্মাস্য, শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক, এই 4 মাস যারা বড় বড় বদনশীল যারা, এরা 4 মাস তারা ব্রত পালন করে। এগুলি মহাপ্রভুর দান পালন করে। যারা পারে না ওই 1 মাস তো করে, 1 মাস তো করতেই হয়, কার্তিক মাস। এই কার্তিক মাসের দেবতা কার্তিক মাস প্রসন্ন হয়ে যায়। এই ব্রত করলে ভগবান প্রসন্ন হয়। ভগবান প্রসন্ন করলেই আমরা ব্রত করি। আমরা दामोदर मास बोले गुरु जी। দামোদর মাস, এই মাসে কৃষ্ণকে মা যশোদা উদরে বন্ধন করেছিলেন। মা যশোদা কৃষ্ণকে ঘুমাচ্ছে না, তারপরে গেছেন তিনি দুধ দিয়ে পড়ে যায়, দুধ রাখছেন, দুধ কৃষ্ণ বলছেন আমাকে স্তন পান না করাইয়া দুধ রক্ষা করতে গেল, আমি রাগ করছি। কৃষ্ণ গোপাল রাগ করিয়া গিয়ে হাঁড়িটা ভাঙিয়ে দিল, হাঁড়ি ভাঙিয়ে দিল। রাধা মা যশোদা আসি দেখেনি সভ্য না, হাঁড়িটা আমার শাশুড়ির আমলের हाड़ी। अरे गुरुजी बोल रहे हैं कि ये जो कार्तिक मास है 12 मासों में श्रेष्ठ मास है। इसको दामोदर मास भी बोलते हैं, कार्तिक मास भी बोलते हैं, और ये श्रेष्ठ मास है। इसलिए दामोदर मास क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक बार सो रहे थे और सो के जब जगे तो रोने लगे, तो मैया यशोदा मैया ने आके उनको स्तनपान कराना चालू किया। और तभी क्या हुआ कि जो चूल्हे पे जो दूध की कढ़ाई रखी थी उससे दूध निकलने लगा, तो गंध आने लगी कि दूध चूल्हे पे गिर रहा है और पजर रहा है। तो यशोदा मैया दौड़ के उस दूध को संभालने के लिए गई, तो कन्हैया जी नाराज हो गए, बोल के मुझको छोड़कर मैया दूसरे की चिंता है, यानी दूध की चिंता कर रही है, मेरी चिंता छोड़ दिया। इसलिए कन्हैया ने गुस्सा हो गए। তারপরে করে পাথর যখন নিল, ভাঙবো, তখন উপরে তো বুঝে না নিচে কি আর উপরে কি, এ তো বুঝে না, जमने मारते पटंग पटंग डंग डंग कर दीजिए। तब कन्हैया ने क्या किया कि वो जो पत्थर लिया, डंडा लिया, और उससे एक जो कलसी थी, मटकी थी, उसको फोड़ दिया। और फोड़े नहीं, যখন মারে না তখন তো ডাকে না ডং ডং করে, তো হারিয়ে জানাই দিচ্ছে মা তোমার সালা আমার বোন আমাকে ভাঙে। তখন যে বুঝতো এই মারকে মায়ে শুনে নিব, তখন এই মায়ে উপরে না মারিয়া নিচে মারলো, নিচে যখন মারলো তখন বন্ধে গেল। আর দইগুলি দধির বান্ড তার ভাই লাগে গেল, দধি বলছে তুমি কোথায় যাবে, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, মায়ের দেখাই দিব, पायर चिन्ह पावे और तुम्हारी गद्दर। वो मटकी जो थी जिसको कन्हैया ने फोड़ा था गुस्सा में, वो मैया की खुद की माँ की मटकी थी। तो वो मैया ने कहा मेरे माँ की मटकी फोड़ दी, और दही गिरने लगा, और दही भी कन्हैया के चरणों को छोड़ नहीं रहा है, बोले हमको फैला के इस तरह से फोड़ के अलग करके कहाँ भाग रहे हो कन्हैया। तो सारा दही कन्हैया के चरणों में चिपट गया, और मैया यशोदा जान गई कन्हैया कहाँ छुपा है। और फिर देखे जब बंद चलो
কোথায় দরজা খুলবো, কোথায় গিয়ে দেখে দরজা খোলা আছে, এইটা ভগবানের দ্রব্য এই করে রাখা। গিয়াও তো আর যখন দেখছে বান্দরগুলি সামনে আসি গেছে, বান্দর দেখে খাচ্ছে তো, আর বান্দর আইলো, বান্দরকে দিচ্ছে, আমি দেখাচ্ছে বান্দরকে। আর এদিকে মা একটা লাঠি সোনার দোষটি খেলা করবার জন্য দিছিল, এইটা পাইয়া নিয়া তখন যাচ্ছে পায়ের চিহ্ন দেখি দেখি আমাদের বলছেন পদ চিহ্ন দেখি দেখিয়া পদ চিহ্ন ধ্যান করি, পদ চিহ্ন ধ্যান করা কৃষ্ণের। কৃষ্ণ তো বান্দর দিকে মুখ করা, আর বান্দরগুলির মুখ হইল কি জটতার দিকে মুখ করা। জটা তো ওদিকে যাচ্ছে না, আর বান্দরগুলি দেখছে, দেখি তার পলায়ন করছে। अच्छा, कन्हैया तो बंदरों को खिलाने में लग रहे हैं, दही और माखन, और बंदरों का ध्यान तो मैया यशोदा की तरफ है, वो लठिया लेके आ रही हैं, लेकिन कन्हैया का ध्यान बंदरों की तरफ है। लेकिन कन्हैया बंदर तो भाग गए यशोदा मैया को देखकर, और ये कन्हैया को पकड़ लिया मैया ने। बंदर তোমরা যাও কেন বে, খাও খাও কেন ভাগ যায় কেন? बंदरों को पूछ रहे हैं कन्हैया क्यों भाग रहे हो तुम, खाओ और मैं हूं ना, खाओ खाओ। और मैया का डंडा और गुस्सा बंदर देख रहे हैं। देखिए उर्दू बोले बसा ছিল, उर्दू बोले मैं गान दे ना, এই দেখিয়া মাকে দেখিয়া এই দৌড় দিল। जैसे ही कन्हैया ने देखा, अरे यशोदा मैया डंडा लेके और रस्सी लेके आ रही है, उखल पे बैठे हुए थे जिसमें धान कूटते हैं, और भागने लगे। মা কি তাকে ধরতে পারবে? মা তো মোটা মানুষ, আর এ তো ছোট মানুষ, বাচ্চাকে মানুষ, মা তো ধরতে পারে না, ধরতে পারে না। কৃষ্ণ দেখে একবার মা কত দূরে আছে, দেখে মার চুল টুল এলোমেলো হয়ে গেছে। কৃষ্ণ বলছে আমি তোরে ধরবো, শাসন করবো, তবে চলবো। তোমার চুলগুলি এলোমেলো হয়ে গেছে। তখন কৃষ্ণ বলছে মা ও পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে, আমাকে না ধরি ছাড়বে না। আচ্ছা মা ধরি না, ধরবো তো ধরবো। তখন বলছে দেখছো তুই, তোরে আমি ধরতে পারবো না, তো ধরলো তো। কৃষ্ণ ধরনা দিল বলে ধরবে না, কৃষ্ণ ধরতে পারে। कन्हैया को मैया ने पकड़ना चाहा, बांधना चाहा, तो कन्हैया आगे भाग रहे हैं, यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही हैं। थोड़ी मैया का शरीर भारी है, लेकिन कन्हैया देख रहे हैं मैया अभी तक पीछे भाग रही है, कभी इस कोने में कभी उस कोने में। देखा जब मैया की जो केस थे वो खुल गए हैं, फूल झड़ गए हैं, माथे से पसीना बह रहा है टप टप करके, बहुत परिश्रम हो गया है मैया का। तो कन्हैया फिर जानबूझ के रुक गए और पकड़ लिया यशोदा मैया ने। पकड़ लिया, দেখছো তুমি তাহলে ধরতে পারছি, ধরবো না আমার পেটের ছেলে, তুমি যাবে কোথায়? ওকে আমি ধরতে, ধরলো তো ধরলো, এখন ধরে বাঁধিয়ে রাখবো। এই চুলের ভিটা আছে না, এই ভিটা দিয়ে নিলেতে বান্ধা হয় না। এই মেয়েরা কোথায় আসো, ধরে নিও। সব মেয়েরা ধরে নিয়ে আইলো, কেউ দুই আঙ্গুল কমে থাকে, হয় না, আবার কমে যায়, আবার হয় না। मैया ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया, आज कन्हैया बिना बांधे तुझे छोड़ूंगी नहीं, ऐसा सबक सिखाऊंगी, जितनी शैतानी करता है सबका आज तुझे अच्छा फल चुकाऊंगी, बांध के पूरे दिन और पूरी रात बांध के रखूंगी। ऐसा सोचते ही खेम मैया ने अपने जो चोटी में जो फीता बंधा था उसको खोला, और दासियों से कहा अरे दासियों जल्दी लेके आओ, रस्सी और लेके आओ, आज कन्हैया को इससे उखल से बांध के रखूंगी सारा दिन। बहुत शैतानी करता है। और जैसे ही रस्सियों को जोड़ रही हैं फीता से, 2 आंगुल छोटी पड़ रही है, 2 आंगुल छोटी पड़ रही है। মা তো ছাড়বে না, আর পরিশ্রম রয়ে গেছে, গাম পাচ্ছে। তো কৃষ্ণ দেখলো রে তো মা তো না বাঁধে ছাড়বে না, আর পরিশ্রম মায়ের পরিশ্রম দেখিয়া যা বাঁধ দিলাম, বান্ধা দিয়ে দিল।
বাঁধবে তো বাঁধ हाँ। বাঁধা দিল এখন বাঁধিব কোথায় রাখবো উদ্যোগের মধ্যে বাঁধল উদ্যোগের জন্য নেই উদ্যোগের মধ্যে বাঁধিয়া যা এখন থেকে যেতে পারছ না কত শক্তি ধরো উদ্যোগকে মা চলে গেল আর উদ্যোগ নিয়ে টানি টানি কোথায় যাবে এই ছেলেরা টাকা দাও उखल तो बहुत बड़ा था। कन्हैया से मैया का परिश्रम देखा। कन्हैया ने बार बार रस्सी जोड़ रही है, बांध रही हैं, माथे से पसीना टपक रहा है, पूरा क्लांत हो गई हैं। तब मैया ने, लेकिन मैया का दृढ़ संकल्प कि आज तुझे बांधे बगैर नहीं छोड़ूंगी कन्हैया, चाहे रात हो जाए। तब कन्हैया ने कहा मैया दृढ़ संकल्प कर चुकी है, बांध के ही छोड़ेगी, तो अब मैं इनके परिश्रम को देख के बंध जाता हूँ। ऐसे ही कोई भक्त भक्ति में परिश्रम करता है, मेहनत करता है, त्याग वैराग्य करता है, तो कन्हैया भी उनकी तरह उसके प्रेम में, उसकी भक्ति में बंध जाते हैं। ऐसे ही यशोदा मैया की भक्ति को देख के, उनकी दृढ़ संकल्प को देख के कन्हैया जानबूझ के बंध गए। সামনে লোক একটা বৃক্ষ এটা বহুত পুরানো এক বৃক্ষ তার নাম কি বৃক্ষ নলকূপের বন্যগুলি তারা এই বৃক্ষ রূপে বাস করতেছে এরা কুবেরের সন্তান ছিল এরা বহুদিন নারদের অভিশাপে তারা বহু বছর ধরে বাস করতেছে তখন এই নলকূপের মণিগিরি দুই বৃক্ষ জোড়া বৃক্ষ মাঝে যে ভাগ আছে এই প্রচন্ড এই ভাগের ভিতর দিয়া যখন চললো আর এই উদ্যোগটা রাখি গেল এইদিকে উদ্যোগটা গেল না এ তো বাইরে গেল আর এই যে দড়িটা এই দড়ি যেমনি টান দিল আর এই বিশাল বৃক্ষ পড়ে গেল এই নলকূপের মণিগিরি কুবেরের সন্তানেরা उद्धार हो गए। इसी लीला को चलते चलते ठाकुर जी ने एक लीला और की, दो वृक्ष के नल मणिग्रीव और नल हैं, दोनों वृक्ष योनि में श्रापित जीवन जी रहे थे। तो उन पे कृपा करने के लिए भगवान ने अपने सखाओं से कहा भैया उखल में धक्का दो। तो उखल में सब धक्का देने लगे और उसको ठेलते ठेलते लुढ़कते लुढ़कते उन दोनों पेड़ों में फंसा दिया और दोनों पेड़ कन्हैया ने घेर दिए और उनसे दोनों वे जो श्रापित देवता थे वो निकल के बाहर हुए और अपने धाम को चले गए कन्हैया का दर्शन करते हुए। इसी ये जो यशोदा मैया ने कन्हैया को जो बांधा इसको दामोदर लीला कहते हैं, यानी इसी कार्तिक महीने की ये लीला है। तो इस महीने में ही गोपियों ने नियम व्रत लिया था कि कन्हैया को प्राप्त करने का, अपने पति रूप में, प्रेम रूप में प्राप्त करने के लिए। तो इसी महीने में गोपियाँ, ब्रज की गोपियाँ सब नियम से, जीवन में कुछ नियम से भजन करना प्रारंभ किया। पोड़ा माता की कार्तिक माँ की बोले कार्तिक व्रत एक ব্রত মহাব্রত এই ব্রত যারা পালন করে এই ব্রতটা কঠিন ব্রত আছে পালন করতে দুইবার খাইতে হয়, নুন লবণ তেল মশলা খাইতে না, যেরকম 4 মাস যারা করে অনেকে বহু ভাগ্যবান, তাই 1 মাসও করো, 1 মাস তো করতেই হবে কার্তিক মাস। এই কার্তিক ব্রত যারা করেন, যারা কার্তিক ব্রত করে, যারা ব্রজের বাহিরে আছে, যারা গৌড়ের সম্প্রদায় এরা বাহিরেও করে, কিন্তু ব্রজে করা बहुत महिमा। गुरु जी बोल रहे हैं कार्तिक महीना का जो महिमा है कार्तिक महीने का, वह यह बाहर भी है, सब जगह है, सब जगह पालन कर सकते हैं। लेकिन चतुर्मास में अगर कोई चतुर्मास ना करके केवल 1 महीना कार्तिक का ही व्रत करे, कुछ भी संकल्प लेके थोड़ा अपने भजन को बढ़ाए कि इस महीने में बिना नमक मसाले का भोजन करूँगा, या मैं 3 बजे जग कर ब्रह्म मुहूर्त में मंगला इत्यादि आरतियों के दर्शन करूँगा, कुछ भी अपने जीवन में नियम रखेगा इस महीने में, तो उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। और गुरुजी बोल रहे हैं कि ब्रज से बाहर यदि कोई रख रहा है तो अच्छा है, लेकिन अगर ब्रज में रहकर जो कार्तिक मास का पालन करता है, इससे बड़ा कोई सौभाग्य की बात नहीं है, उसका फल तुरंत लाभ करेगा। राधा कुंड में अगर कोई कार्तिक मास को पालन कर रहा है इस व्रत को, इसलिए दूर दूर देश में इस महीने में
विदेश से, देश से बहुत काफ़ी लोग, भक्त लोग राधा कुंड वृंदावन में आकर उपस्थित होते हैं और कार्तिक मास 1 महीना पर्यंत यहाँ राधा कुंड में रहकर नियम निष्ठा से मंगला आरती, संध्या आरती का दर्शन करते हैं। प्राय राधा कुंड में स्नान करते हैं नियम से, प्राय गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं नियम से। यह बात बता रहे हैं, अगर कोई ब्रज में रह के कार्तिक मास का पालन करेगा तो ठाकुर जी निश्चित उसको प्राप्त होंगे, ऐसा बाबा बोल रहे हैं। जय जय श्री राधे।